A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is types of reading. As we have gone through different phases of this reading process, its definition, its background, and we are trying to understand what reading is, because it is essential for us, imperative for us to know the basics of reading. As you know very well, reading is a gateway, is the threshold of comprehension. It is a direct way to comprehension, understanding a given text, the reaching the message, reaching the meaning of that paragraph that is given to us for comprehension. Therefore, let's go ahead and see what are the types of reading we have to undertake while going through the reading process. Generally speaking, there are three kinds or types of reading considering the speed of the readers. They are: number 1, slow reading; number 2, speed reading; number 3, sub-vocalization. We will go through the details of these three kinds of readings in the next pages. Dear students, slow reading is the intentional reduction in the speed of reading carried out to increase comprehension or pleasure. The concept appears to have originated in the study of philosophy and literature as a technique to comprehend and appreciate a complex text. It is not bad reading at all, rather, it reaches the desired level of accuracy at first hand. अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये स्लो रीडिंग जो है ये एक अरादी तौर पर स्पीड को कम करने का अमल है, जो जिसमें हम जानबूझकर इंटेंशनली जानते बूझते जो है वो अपनी रीडिंग की स्पीड को कम करते हैं ताकि दिए गए कम्प्लेक्स पैराग्राफ जो हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, समझने के लिए दिए गए हैं, उनकी कॉम्प्रीहेंशन के लेवल की जो एक्यूरेसी है, दुरुस्तगी है, उसको और मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा सके। ये एक गोया स्लो रीडिंग जो है वो एक तरह से पढ़ने की एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है कि हम अपनी नॉर्मल स्पीड को थोड़ा सा स्लो करते हैं और उस स्लोनेस के साथ, इस स्लोनेस का मतलब जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ऑन आवर रीडिंग हैबिट्स। इट इज़ ए पॉजिटिव साइन कि हम थोड़ा सा उसको स्पीड को अपनी तेज़ी करने की बजाय हम उसको स्पीड को थोड़ा सा जो है मॉडरेट करते हुए, लिमिटाइज़ करते हुए, हद में रखते हुए, बैलेंस करते हुए हम एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करते हैं ताकि दुरुस्तगी, परफेक्शन जो है वो हमारी रीडिंग प्रोसेस में जो है वो आ जाए। Then comes the second type of reading. It is called speed reading. Speed reading is any of several techniques used to improve one's ability to read quickly. Speed reading methods include chunking the material and minimizing sub-vocalization. The many available speed reading training programs include books, videos, software, and seminars. Speed reading is indeed a habit of quickly going through the text to reach the meaning, to reach the message in a short time. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दरअसल स्पीड रीडिंग जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को जमा करके जब हम अपनी एबिलिटी इस हद तक हासिल कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन की सलाहियत इस हद तक जब निखर जाती है कि हम बड़ी तेज़ी के साथ, क्विकली, टाइम सेविंग के साथ हम किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो हालत जो है वो स्पीड रीडिंग की हालत कहलाती है। ये प्रैक्टिस के साथ आती है। ये जो किस्म है या रीडिंग की ये जो शक्ल है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, ये असल में प्रैक्टिस पर बेस करती है। जब हम बार बार इस प्रोसेस में से, रीडिंग के प्रोसेस में से गुज़रते हैं, सपोज़
अगर पहला ही पैराग्राफ है जिसको हम रीड कर रहे हैं फॉर द सेक एंड पर्पज़, हमारे सामने एक नुक्ता नज़र है कि अब हमने ये पैराग्राफ, वैसे तो हम ज़ाहिर है भाई छोटी जमातों से, जब हम पहली जमात में दाखिल हुए थे तो तब से लेकर अब तक जो है हम मुख्तलिफ टेक्स्ट्स पढ़ते चले आ रहे हैं, बट आवर methods of reading were different, our purposes of reading those texts were different. Now we are reading with a purpose and that purpose is our comprehension. अब हमारा जो फोकस है, अब हमारा मकसद जो है वो बदल गया है, तो लिहाजा हम अपने मकसद को यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मकसद को, कॉम्प्रीहेंशन के लिए पढ़ने के मकसद को ज़हन में रखते हुए जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम बड़ी आसानी से पैराग्राफ्स के जो मानी हैं बग़ैर रुके हुए, बग़ैर किसी मुश्किलात से जो है वो घबराए हुए, हम आसानी से जो है वो परफेक्शन को अचीव कर लेंगे। जैसे मुश्किल अल्फाज से हमारी वाकफियत ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे हम मज़ीद टेक्स्ट को पढ़ते जाएंगे वोकैब में बेहतरी आएगी, हमारी एप्रीहेंशन ऑफ द सेंटेंसेस बेहतरी आएगी, हमें पता चलेगा कि भाई कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं और कैसे इनको पहचानते हैं, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जल्दी से जुमलों को समझ लेते हैं, तो जहन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी आई जो हमारा टूल है मेन, उसके साथ जो है वो एसिमिलेट करती है, अकोमोडेट करती है, और हम तेज़ी से अपनी गुज़श्ता इल्म के हिसाब से कॉम्प्रीहेंशन के लेवल को, बेहतरी के लेवल को जो पा लेते हैं। तो इस हालत को जब हम अपनी तमाम एबिलिटी को मुकम्मल, ये एबिलिटी जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ का मजमूआ है, अपनी रीडिंग एबिलिटी को जब हम इस हद तक रिफ़ाइन कर लें, बेहतर कर लें, एक्विप कर लें कि हम तेज़ी से पढ़ने के काबिल हो जाएं, तो इस हालत को हम स्पीड रीडिंग जो है वो कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पोर्शन स्पीड रीडिंग हैज़ बिन डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड ए लिटिल बिट फर्दर. Speed reading is the process of rapidly recognizing and absorbing phrases or sentences or words on a page all at once, rather than identifying individual words one by one. Most people read at an average rate or speed of 250 words per minute, though some are naturally quicker than others. But the ability to speed read could mean that you double this average rate of reading. बेटे ये स्पीड रीडिंग का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से तमाम जुमलों, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को समझने का है, पहचानने का है, और इसमें हम बजाय इंडिविजुअल वर्ड्स और मुश्किल अल्फाज पर तफक्कुर करने के, रुकने के, हम तेज़ी से जो है वो चीज़ों को पहचानने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उमूमी तौर पर एक आम जो रीडर होता है, एकेडमिक रीडर जो है, वो 250 अल्फाज पर मिनट जो है साइलेंट रीडिंग में पढ़ सकता है। लेकिन ये कंपेयर करने के लिए हम ये ज़रा यहाँ कहा गया है कि अगर हम ये स्पीड रीडिंग की एबिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस स्पीड को यानी 250 वर्ड्स को डबल करना होगा। मतलब 500 अल्फाज वाली स्पीड जो है पर मिनट, 500 वर्ड्स पर मिनट जो है उस तक जो है वो जाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्पीड रीडिंग टेक्निक्स हैव वन थिंग इन कॉमन. You avoid pronouncing and hearing each word in your head as you read it, a process known as subvocalization. Instead, you skim or skip lines or groups of words as you can understand words more quickly than you can say them. जब हम बेटे टेक्निक्स की बात करते हैं तो हर रीडर जो है वो अपनी एबिलिटी, अपनी जहानत, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक मुख्तलिफ रीडिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़ और प्लान्स जो है वो डेवलप करता है, जो उसकी शख्सियत के साथ, उसकी लर्निंग के साथ, उसके नॉलेज के साथ जो है वो अकोमोडेट करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ टेक्निक्स एक रीडर अपनाता है, उन सब में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है और उसका ध्यान रखा जाता है कि हम बतौर कारी, हम बतौर पढ़ने वाले के रीडर के तौर पर हम
लफ्ज़ों को अपने दिमाग में प्रोनाउंस करने से, जिसे हम सब वोकलाइजेशन कहते हैं, वो अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनकी प्रोनाउंसिएशन के बगैर जो है बस तेज़ी से उनको आई से रिकग्नाइज़ करते हुए आगे गुज़रते चले जाएं। इसको लफ्ज़ों को स्किम करना या स्किप करना जो है वो कहते हैं। इससे हमारी स्पीड जो है उसमें तेज़ी आती है और हम क्विकली जो है वो अगले से अगले फैक्ट तक जो है वो पहुंचते चले जाते हैं। और भी बेशुमार टेक्निक्स जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं कि हम फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं उनको ओपिनियन से जो है वो अलहदा करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और सिर्फ फैक्ट्स को पढ़कर जो है उसे आगे गुजरते चले जाते हैं। उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। ये दो टर्म्स जिनका अभी जिक्र हुआ है, स्कैनिंग और स्किमिंग, ये बाकायदा जो है वो इनको हम डिटेल से अगले हिस्से में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। द लास्ट एंड फाइनल kind or type of reading is called subvocalization. Subvocalization, that is also known as auditory reassurance. Auditory reassurance is a very common habit among readers. It involves saying words in your head while reading, and it is one of the main reasons why people read slowly and have trouble improving their reading speed. Saying words silently to oneself while reading is known as subvocalization. Subvocalization or silent speech is the internal speech typically made when reading. It provides the sound of the word as it is read. This is a natural process when reading, and it helps the mind to access meanings, to comprehend and remember what is read, potentially reducing cognitive load. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सब वोकलाइजेशन उस अमल का नाम है जब हम पढ़ रहे हों तो पढ़ने के दौरान हम लफ्ज़ों को ज़हनी तौर पर प्रोनाउंस करते रहते हैं। और ये जो ज़हनी प्रोनाउंसिएशन है जो अनइंटेंशनल होती है, ये लगातार जो है वो हमारी पढ़ने की स्पीड को, रीडिंग स्पीड को जो है वो रिड्यूस करती चली जाती है और उसमें रुकावट बनती है, उसमें हाइंड्रेंस का बायस होती है। तो ये जैसे इसको डिफ़ाइन यहाँ किया गया है कि सेइंग वर्ड्स साइलेंटली टू वन सेल्फ, ये इसको हम सब वोकलाइजेशन कहते हैं। वोकलाइजेशन आप समझते हैं वोकल कार्ड्स का इस्तेमाल, तो ज़ुबान जो है वो अदा नहीं कर रही होती लेकिन जहन जो है वो उनको सुन रहा होता है, दिमाग हमारा जो है वो उनको सुन रहा होता है। तो ये लाउड रीडिंग के करीब करीब चली जाती है, जिसको हमने पहले देखा है कि लाउड रीडिंग भी होती है एक, जिसमें हम लफ्ज़ों को बाकायदा बुलंद आवाज़ से पुकारते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो साइलेंट स्पीच है या खामोश तकरीर है जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं या अंदर ही अंदर अपने आप से मुखातिब होते चले जाते हैं, लफ्ज़ पढ़ते जाते हैं, ये हमारी स्पीड को जो है वो कम करती चली जाती है और कॉम्प्रीहेंशन में बहुत बड़ी रुकावट समझी जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये फ़ायदा भी देती है। देखिए, जब तक हमें लफ्ज़ों को सही तरह से बोलना नहीं आएगा, हम उनको सही तरह से पहचान नहीं पाएंगे, उनकी मानी को सही तरह से जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे। तो जहाँ इसके फ़वायद हैं, नुकसानात हैं, वहाँ फ़वायद भी हैं। तो बाज़ औक़ात ये टेक्निक जो है सब वोकलाइजेशन की, ये भी एक टेक्निक है, स्ट्रेटजी है। तो ये बाज़ औक़ात जो है वो जो है वो बच्चों को, तलबा को, रीडर्स को जो है वो फ़ायदा भी पहुंचाती है। यानी ये मुकम्मल तौर पर एक मुश्किल ही हमारे सामने नहीं लाती है, हमें मुश्किल में नहीं डालती है रीडिंग के दौरान, बल्कि ये हमारी सपोर्ट भी करती है। सब वोकलाइजेशन मेक्स क्लियर द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, द मीनिंग ऑफ द कंटेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द कंटेंट दैट वी आर गोइंग थ्रू। अगर कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ है जो हम रीडिंग के बगैर, बाज़ औक़ात दरमियान में लाउड रीडिंग भी करना पड़ती है, साइलेंट रीडिंग के दरमियान में लफ्ज़ को प्रोनाउंस किए बगैर हम उसके सही मानी को, उसकी सही शेप को जो है वो समझने में नाकाम रहते हैं। तो बहरहाल ये दोनों इसके पहलू हैं, इट इज़ पॉजिटिव एज़ वेल एज़ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी है सब वोकलाइजेशन और ये नेगेटिव भी है। देखिए बेटे, ये असल में लफ्ज़ों को ज़हनी तौर पर अंदर ही अंदर पढ़ने के नाम है, जिसे हम सब वोकलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स
or reading strategies and techniques a reader adopts while reading. The goal is, after all, achieving comprehension of the text in a better way. عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے 3 طرح کی جو ریڈنگ کی قسمیں ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ سلو ریڈنگ ہے، سپیڈ ریڈنگ ہے اور سب ووکلائزیشن ہے۔ دراصل ریڈنگ ایک کمپلیکس پروسیس ہے جس میں ہمارا دیکھیے، جیسے ہم اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پریویس نالج، ہماری جرنل ایبلٹی آف دا لینگویج، ہمارا ماحول، انوائرمنٹ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارا دھیان جسے ہم اٹینشن کہتے ہیں، فوکس کہتے ہیں، اور ٹیکسٹ کا معیار کہ ہمیں ٹیکسٹ جو ہے، مٹیریل جو ہے وہ کس قسم کا دیا گیا ہے، ہمارا برین اور آئی کا کانٹیکٹ، ہمارا باڈی پوسچر، اور ہمارا جو ایکسٹرنل ماحول ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کا ماحول جو ہے۔ ایکسٹرنل ماحول سے مراد ہے، دیکھیں جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں اگر روشنی کم ہے آپ ٹیکسٹ کو صحیح طرح سے ریڈ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کی جو فیسلٹیز، چلیں آپ جرنل کہہ لیں، آپ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ تو ریڈنگ از اے ویری کمپلیکس پروسیس. From first to last, it has to go through many stages and many hindrances, many hurdles, and a good reader occupies all these hurdles, all these hindrances one by one with practice. Practice makes a man perfect. تو یہ جو چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں پڑھنے کے درمیان میں، مشکل الفاظ آ گئے، وکیب کا آؤٹ آف ٹچ ہونا، سنٹینسز کا کمپلیکس ہونا، ٹیڈیس ہونا، ٹیکسٹ کا جو ہے وہ بھاری بھرکم ہونا، یا جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بیٹے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہمارے رکاوٹیں ہیں، جیسے ہم دیکھیں ایک طالب علم جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، دل نہیں کر رہا اس کا اس وقت پڑھنے کو، کمپریہینڈ کرنے کو، تو وہ ظاہر ہے اگر ہم اسے مجبور کر کے وہ ٹیکسٹ پڑھنے پر لگا دیں گے تو وہ ظاہر ہے اس میں سے کچھ گین نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا موڈ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی جو انٹرنل شخصیت ہے وہ بھی اس میں کمپریہنشن میں انوالو ہے، جیسے کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہیں وہ مین اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ آپ کا کلاس روم اگر آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں کمپریہنشن، تو کلاس روم انوائرمنٹ، آپ کے ٹیچر کا رویہ، آپ کا اپنا رویہ، کلاس کا ماحول، یہ سب جو ہے وہ بے حد کاؤنٹ کریں گے۔ تو یہ بیٹے ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی، سی یو ویری سون۔ اللہ حافظ۔